Hello, everybody. A very good evening and a very warm welcome to yet another super interesting, super curious, and an amazing session by Curious Minds with me, Pritesh, your host, your host, and a proud educator only from Imbibe. Yes, guys, and today we are talking about STIs and us. STI, that is sexually transmitted infections. And do you know that according to the statistics in the year 2020, India recorded 30 million, yes guys, 30 million cases of sexually transmitted infections. आज हम कई ऐसे टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल ओपनली बात करते हैं जो कुछ सालों पहले तक टैबू थी, लेकिन हम अभी भी उन टॉपिक्स के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि STIs. We are still very hesitant to openly talk about sexually transmitted infections, but it is very, very important that we address the issue. 30 million people were having STIs in the year 2020. It is really a very, 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 very big number, right? But yet we do not address the issue. STIs एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत ही सटली, बहुत ही अननोइंगली बॉडी के अंदर आ सकता है एंड इट कैन कॉज अ हैवॉक, राइट. STIs कैन हैपन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. STIs एग्जैक्टली होते क्या है, क्यों women are at a higher risk of acquiring STIs as compared to men, why are there are certain STIs which do not have any symptoms, or do you know that STIs can also spread without any sexual activity. So this and a lot more coming up in today's session of Curious Minds, where we are talking about STIs and us. But before that, let me tell you a little bit about this amazing Imbibe page, which gives you completely free of cost and immersive interactive learning experience of test, assignment, study material, question, solution, explanation to solution. You also get free access to books, reference books and NCERTs, and that too of any board, any grade, any subject, and in any language, completely free of cost. So make sure that you explore the Imbibe page, and also you can download the Imbibe app, which is freely available on Google Store and Apple Store. इसी के साथ साथ हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़िए, बिकॉज टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको आपके ग्रेड 6 to 8 के Imbibe के चैनल पर जो भी आ रहा है उसके अपडेट्स मिलेंगे, सेशंस के PDFs मिल सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट करके अपने एकेडमिक डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम बाय following me on Insta, and that's my Insta handle, biology with Pritesh. तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप इस पे जाकर मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट STIs एंड अस, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इन्फेक्शंस एंड अस. तो STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हम इसे बोल सकते हैं. ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही सिर्फ ऐसा तरीका नहीं है जिससे STI स्प्रेड होते हैं. आइए देखते हैं कैसे. STI स्प्रेड प्रीडोमिनेंटली बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. जब दो लोग एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन or not using any kind of a barrier in exchange of the body secretions or the body fluids, then it has a very, very high risk of acquiring a STI or STD. Some STIs can also be transmitted during pregnancy, during childbirth and breastfeeding through infected blood or blood products. तो एक इन्फेक्टेड मदर, सपोज एक मदर है जिसे STI हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो मदर प्रेग्नेंट है तो फीटस को STI हो सकता है, या फिर अगर वो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो वो बेबी जो ब्रेस्ट मिल्क पे फीड हो कर रहा है उसे भी STI ट्रांसमिट हो सकता है. सो अब देखिए, अब वो बेबी को अगर मदर के मिल्क से STI हुआ, सो हियर देयर इज नो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बट येट द चाइल्ड हैज़ गॉट STI. सो STIs कैन स्प्रेड विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एज वेल. एंड खतरनाक बात तो ये है कि कई सारे ऐसे STIs हैं जिनके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे गो अनडिटेक्टेड.
उसी के साथ साथ नॉन 35 STIs हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कई सारे पैथोजेंस हैं जो STI कॉज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। What causes STI? STIs can be caused by bacteria, virus and parasites, जैसे कि क्लैडेमिया, जेनिटल herpes। अब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्लैमिडिया एंड जेनिटल herpes दे आर asymptomatic STIs and they can go undetected for a very very long time। उसी के साथ साथ वॉट्स, गोनोरिया, HIV, एड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दैट इज HPV, सिफिलिस एटसेट्रा आर सर्टन अदर STIs। तो ये है STIs के इन्फेक्शंस जो पास हो सकते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, एंड द कॉजेटिव एजेंट कैन बी अ बैक्टीरिया, अ पैरासाइट और अ वायरस एज वेल। देखिए, ये है HIV का वायरस, इट्स अ रेट्रो वायरस। देख सकते हैं कितना वेल प्रोटेक्टेड है ये। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड ये HIV जब बॉडी में आता है तो ये 3 स्टेजेस में आता है। स्टेज 1 में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि फीवर, जैसे कि लॉस ऑफ बॉडी वेट, डायरिया, फटीग, रैशेज ऑन द बॉडी। These are the symptoms of the first stage of AIDS which lasts for a few months। इसके बाद कई सालों तक, almost for 10 years, there are no symptoms at all। The person is completely healthy and जो symptoms थे, जो fever था, fatigue थी, वो सब कुछ चला जाता है and almost 10-20 सालों तक उस बंदे में कोई भी symptoms नहीं दिखते। The person feels as healthy as new। लेकिन थर्ड स्टेज इज द फुल ब्लोन एड्स। अब यहाँ पर इट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जहाँ पर पर्सन की जो इम्यूनिटी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन की इम्यूनिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ऑर्गन्स की रेजिस्टेंस पावर ख़त्म होने लगती है, एंड द पर्सन डेवलप्स मल्टीपल ऑर्गन फेलियर विच लीड्स टू डेथ। लेकिन अब मेडिकल फील्ड ने इतना एडवांसमेंट्स कर चुके हैं वो, कि जो HIV है उसे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, जो इंसान की इम्यूनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। द पर्सन हैज़ टू बी ऑन सर्टन मेडिकेशंस थ्रू आउट लाइफ विच कंट्रोल द वायरस एंड दे कीप द पर्सन हेल्दी एंड दे ऑल्सो एक्सटेंड द लाइफ स्पैन। लेकिन आज से कई सालों पहले एड्स का कोई भी मेडिसिन नहीं था, कोई भी उसका इलाज नहीं था, एंड एड्स होने का एक ही अंत था, दैट इज डेथ, एंड दैट टू अ पेनफुल डेथ बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। बट टुडे वी हैव मेडिसिन दैट कैन डेफिनेटली कंट्रोल द वायरस। लेकिन चाहे मेडिसिन हो ना हो, जो भी हो, STIs एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो उसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे प्रिवेंट किया जा सके। Then these are the different kinds of STIs, like I have got HIV and AIDS, that is human immunodeficiency virus, that causes acquired immunodeficiency syndrome. The treatment is combination of drugs that reduce the viral replication. Genital warts, it's caused by the HPV, the warts can be removed. Hepatitis B is caused by hepatitis virus, there is no medication for that। You can see hepatitis B के virus के लिए there is no medication, the only thing that can be done is a vaccine when the person is an infant। These are caused by viruses। अब बैक्टीरिया से होता है chlamydia without any symptoms, it is caused by chlamydia trachomatis, antibiotics can be taken। Gonorrhea is caused by gonorrhea, again a bacteria, antibiotics। Syphilis, Streptonema pallidum, again antibiotics। फिर प्रोटिस कैन कॉज एन STI जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस, इट इज कॉज बाय ट्राइकोमोनास वैजिनलिस। इसका एंटीप्रोटोजोन ड्रग्स ले सकते हैं, इट अफेक्ट्स द वजाइना। फंगाई, कैंडिडियासिस, कैंडिडा एल्बिकन्स, इट ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड यूजिंग एन एंटी फंगल ड्रग्स। अब आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि फीमेल्स आर एट अ हायर रिस्क ऑफ STIs एज कम्पेयर टू मेल्स। Yes, this is a fact। Females are at a higher risk of acquiring an STI as compared to males। इसलिए it is very important that during sexual contact, both the partners are using enough protection, they are using enough barriers to prevent the exchange of any kind of body fluids, right? Then, how STIs can spread other than sexual contact? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ sexual contact ही ज़रूरी नहीं है STI spread होने के लिए। sharing injection needles or surgical instruments, blood transfusion,
Organ transplantation can spread the virus like HIV from infected person to healthy person, sharing towels and clothes. Single-celled protozoan parasite called Trichomonas vaginalis causes trichomoniasis. This can spread by sharing towels and clothes. नाउ यहाँ पर मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो मैंने खुद सुना है. तो many years back when I was living in my hometown, I was working in an institution as a faculty, and वहाँ पर हमारी एक colleague थी, and that colleague was working in a pathology lab before joining that institute. तो ये कहानी हमारे कलीग ने हमें बताई. तो वो बता रही थी कि उनकी जो लैब थी उस लैब में एक उनका कलीग था जो सारे ब्लड सैंपल्स को, यूरिन सैंपल्स को बेयर हैंडेड हैंडल करता था. उसे कई बार बोला गया था कि ये मत करो, ये बहुत रिस्की है, एंड यू आर नॉट सपोज टू टच ब्लड विद बेयर हैंड्स. एंड ये तो आप पता नहीं कितने ही पेशेंट्स का ब्लड टच कर रहे हो, कितने ही पेशेंट्स की यूरिन टच कर रहे हो. तो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज वेयरिंग ग्लव्स एंड यू आर चेंजिंग योर ग्लव्स एट रेगुलर इंटरवल्स. लेकिन उसने बहुत ही केयरलेसली लिया और वो बेयर हैंड से सारे ब्लड सैंपल्स एंड यूरिन सैंपल्स के साथ जो भी एनालिसिस टेस्ट करने होते थे वो करता था. अब कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, ये सब लोगों का एक अच्छा सा ग्रुप था, एंड उन्होंने बोला कि चलो यार हम सब HIV टेस्ट करते हैं. एंड बिकॉज दे वर वर्किंग इन अ पैथ लैब, उनके लिए टेस्ट करना बहुत आसान था. उन्होंने अपने अपने ब्लड सैंपल्स दिए एंड दे टेस्टेड HIV. अब सभी का नेगेटिव आया सिवाय उस एक लड़के के. उसका HIV पॉजिटिव आया. ही हैड गॉट द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन हिज ब्लड. अब वो हुआ कैसे? Now he had not had any kind of sexual contact or blood transfusion or sharing of needle or sharing of towels with anybody. फिर उसके अंदर वो वायरस आया कैसे? अब जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने सोच विचार किया, बहुत ज़्यादा खोज की, तब उन्हें ये समझ में आया कि वो लड़का बेयर हैंड से ब्लड हैंडल करता था. अब हमारे हाथों पर कई बार ऐसे कट्स होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, जो पेन भी नहीं करते, माइनर कट्स होते हैं विच वी डोंट इवन रियलाइज. एंड अगर हमने गलती से किसी HIV पॉजिटिव का ब्लड टच कर लिया तो चांसेस हैं कि उन माइनर कट्स के थ्रू वो ब्लड का वायरस हमारे ब्लड में चला जाए एंड द पर्सन कैन गेट HIV पॉजिटिव. एंड इसी रीज़न से वो लड़के को भी HIV हो गया एंड नाउ ही हैज़ टू बी ऑन मेडिकेशन थ्रू आउट लाइफ. तो इसलिए एक बात याद रखिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप कहीं जा रहे हैं, या यू एवर फाइंड समबडी who has met with an accident or an injury and you don't know the person and the person is in blood, please do not touch the blood. कभी भी किसी भी अननोन पर्सन के ब्लड को टच नहीं करना है बेयर हैंड से. हमेशा इफ़ यू हैव सर्जिकल ग्लव्स तो वेरी गुड, या फिर आप प्लास्टिक पहनकर उस पर्सन की हेल्प कीजिए. हेल्प ज़रूर आपको करनी है, आप इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाइए, मेडिकल असिस्टेंस दीजिए, लेकिन कभी भी किसी अननोन पर्सन के ब्लड को अपने बेयर हैंड से टच मत कीजिए. इट कैन बी वेरी रिस्की. सिर्फ HIV नहीं, कई सारे वायरसेस, कई सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस कैन स्प्रेड. बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा, कई बार हमारे हाथों पर कुछ ऐसे कट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता. राइट? सो मेक श्योर कि इससे हम सीखें और अपना ध्यान रखें. ठीक है? तो STIs कैन स्प्रेड अदर देन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एज वेल. एंड हाउ टू प्रिवेंट STI? ऑब्वियसली अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, avoid sexual contact with multiple partners, avoid sharing of surgical instruments or injection needles, and vaccination is effective in preventing certain types of STI जैसे कि आपके HPV, hepatitis A and B, जैसा कि मैंने आपको कहा, these can be prevented by taking a vaccine. Also, there is something called as a PrEP, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, स्पेशली अमंगस्ट यूथ. पीपल आर टेकिंग प्रेप नाउ. प्रेप एक ऐसी मेडिसिन है, इट इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ अ टैबलेट विच द पीपल दे टेक इट टू अवॉइड गेटिंग एनी काइंड ऑफ STI. So PrEP is like, it might be a short for preparation. So it is a pill that you can take in which will prevent you from getting any kind of STI. ठीक है? सो ये था STI के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन.
होप कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा है. इफ yes, तो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप. डू शेयर इट विद एवरीबडी whom you know and subscribe to this channel because it is absolutely free. एम्बाइब के पेज को भी विजिट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. इट गिव्स यू एन इमर्सिव इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अनलिमिटेड फ्री एक्सेस टू टेस्ट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन सॉल्यूशन, explanation to solution, books, reference books, NCERTs, and that too of any board, any grade, any subject, and in any language. Also guys, download the Imbibe app which is freely available on Google Store and Apple Store. हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़िए बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेंगे सेशंस के पीडीएफ्स, आपको मिलेंगे जो भी Imbibe अचीव सीबीएसई क्लास 6 to 8 चैनल पर होने वाले प्रोग्राम्स हैं उनके अपडेट्स, और अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी. सो डू कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम एंड मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़िए बाय फॉलोइंग माई इंस्टा हैंडल दैट इज बायोलॉजी विद प्रीतेश. एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट गाइज, दिस इज प्रीतेश, your host, your dose, and a proud educator from Imbibe, signing off for now. Take care of yourself, stay healthy, stay happy, stay blessed, and do not forget to keep imbibing. We believe in you. Keep imbibing. We believe in you.